میں جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے روزے کی فضیلت۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ۔ روزہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کا لغوی معنی رک جانا ہوتا ہے۔ شریعت میں، اسلام میں روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے خاطر کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے روکے رہنے کو کہتے ہیں۔ کھانا پینا عام دنوں میں تو حلال ہے، ہم بستری کرنا، بیوی سے ملنا عام دنوں میں تو حلال ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں متعین اوقات میں مسلمانوں کے لیے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ کھانا پینا عام دنوں میں حلال ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے، کوئی بھی پی سکتا ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے۔ متعین اوقات میں مسلمانوں کے لیے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں صرف دن کے وقت کھانا پینا اور بیوی سے ملنا، بیوی سے ہم بستری کرنا دن کے وقت حرام ہے، اور روزہ رکھنے کا حکم صرف ہمیں لوگوں کو نہیں ملا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پورا دن بھوکا رہنا بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت دقت ہوتی ہے، لیکن یہ جو روزہ ہے صرف ہم پر فرض نہیں ہوا، بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ رکھنا فرض تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والوں، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، تم پر روزہ رکھنا اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جو کھانا پینا اس لیے چھوڑے ہیں کہ ہم روزے پر ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا ہے، غیبت کرنے والا غیبت کرنا نہیں چھوڑا ہے، بے ایمانی کرنے والا بے ایمانی کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، او ایمان والوں، تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم جوا کو چھوڑ دو، شراب کو چھوڑ دو، زنا کو چھوڑ دو، بدکاری کو چھوڑ دو، غیروں کی بیٹیوں پر غلط نظر کرنے پر چھوڑ دو، اور ماں بہنوں سے کہتا ہے کہ تم پردے پر آ جاؤ، اپنے آپ کو حفاظت کرو، اپنے آپ کو تقوی میں رکھو، اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ، جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، دوسرے کی برائی نہ کرو، کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو۔
लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम तकवा वाला बन जाओ, ताकि तुम एक नेक इंसान बन जाओ, ताकि तुम नेक औरत बन जाओ, ताकि तुम एक अच्छी बीवी बन जाओ, ताकि तुम एक तकवा वाला शोहर बन जाओ, ताकि तुम एक परहेजगार बाप बन जाओ, ताकि तुम एक परहेजगार और नेककार नौजवान बन जाओ। क्या फर्क पड़ता है? नौजवानों को कुछ फर्क पड़ता है? या बिजनेस कारोबार करने वालों को कोई फर्क पड़ता है कि हम रोजे से झूठ नहीं बोलेंगे? नौजवानों को कोई फर्क पड़ता है कि इतना बड़ा जो मुबारक महीना पार हो रहा है, हम पबजी और फ्री फायर को छोड़कर अल्लाह की इबादत करें? कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कुरान के अंदर, किसी दुनियावी किताब के अल्फाज नहीं, उस किताब के अल्फाज हैं जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया कि तकवा वाला बनो, परहेजगार बनो, मुत्तकी बनो, अच्छा और नेक इंसान बनो। हम नहीं कर पा रहे। इस आयत करीमा से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि रोज़ा तमाम आदियान साबिक़ा में फ़र्ज था। नीज़ मौजूदा आसमानी किताब तौरात और इंजील से इसकी शहादत इन अल्फाज में मिलती है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों पर फ़र्ज किया है। लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि रोज़े रखने की सूरत उमम साबिक़ा में क्या थी, लेकिन इतना मालूम है कि यहूद और नसारा मुकर्ररा औकात में मखसूस तरीक़ों के साथ रोज़ा रखते थे। यहूद और नसारा भी रोज़ा रखते थे। अब हदीस की तरफ चलिए। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना में तशरीफ लाए तो यहूदियों को आशुरा का रोज़ा रखते हुए पाया। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे रोज़े का सबब पूछा, उन्हें रोज़े के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यहूदियों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम बनी इसराइल को फिरौन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन से नजात दी थी, इसलिए हम शुक्रिया के तौर पर अल्लाह के लिए रोज़ा रखते हैं। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम से हमारा ताल्लुक तुमसे ज़्यादा है। हालांकि फिर चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आशुरा का रोज़ा रखा और सहाबाए कराम को उस दिन रोज़े रखने का हुक्म दिया। तो गैर मुस्लिम भी रोज़ा रखते थे। अब एक हदीस के अंदर आता है, इमामी कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों और अहले किताब यानी यहूद और नसारा के रोज़े रखने में सहरी खाने का फ़र्क है। और एक दूसरी हदीस के अंदर इमामी कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ों में सबसे अच्छा रोज़ा, रोज़ों में सबसे बेहतर रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का है। आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते। इन हदीसों से मालूम होता है कि पिछली उम्मती भी रोज़ा रखती थी। उनके रोज़े रखने के औकात अंदाज मुख्तलिफ थे, अलग थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए रोज़े, उन लोगों के रोज़े रखने की परेशानियों और मुशक्क़तों को बयान करके हमारे लिए आसान कर दिया। हमारे लिए परेशानियों को और मुशक्क़तों को आसान कर दिया।
पिछली उम्मतियों के रोजे रखने का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए रोजे रखने की परेशानियों और मशक्क़तों को आसान कर दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए कि ये एक फितरी बात है कि जब एक इंसान जान लेगा, एक इंसान समझ लेगा, एक मुसलमान इस बात पर गौर व फिक्र कर लेगा कि जो हमसे पहले लोग थे यानी अंबिया अलैहिस्सलाम और नबियों ने इस महीने को बर्दाश्त कर चुके हैं, इस महीने की परेशानियों और मशक्क़तों को बर्दाश्त कर चुके हैं, तो फिर हम मुसलमानों के लिए रोज़ा रखना भी आसान होगा और खुशी का बाअस भी बनेगा। अफसोस तो होता है, बहुत ऐसे मुसलमान भी होते हैं जो जानबूझकर रोज़ा नहीं रखते। अफसोस है ऐसे मुसलमानों पर, और ऐसे मुसलमान बदनसीब हैं, बहुत बड़े बदनसीब हैं जिनको ये मुबारक महीना मिला है और वो नेकियां हासिल ना कर सका। जिसको इस मुबारक महीना मिला है और वो जहन्नम से नजात ना पा सका, जहन्नम से दूर ना हो सका, वो बहुत बदनसीब मुसलमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत और बंदों पर उसका फضل व एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े को एक बार फ़र्ज नहीं किया है, कई मराहिल के बाद फ़र्ज किया। पहला मरहला इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में 3 दिन का रोज़ा रखते थे। आपकी पैरवी में आपको देखकर सहाबाए कराम भी रोज़ा रखते थे, यहाँ तक कि रोज़ा रखना आसान हो गया। दूसरा मरहला इमाम कायनात जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, जैसा कि मफ़हूम की हदीस अभी गुजर चुकी है, चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आशुरा का रोज़ा रखा और सहाबाए कराम को उस दिन रोज़े रखने का हुक्म दिया। तीसरा मरहला रोज़े की फ़र्ज़ियत से मुतालिक जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ईमान वालों तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और इब्तिदाई इस्लाम में एक हुक्म ये भी था कि रोज़े की आदत ना होने की वजह से मुसलमानों को उन्हें रुख्सत दे दी गई थी कि अगर वो रोज़ा ना रखे तो उसके बदले में एक मिस्कीन को खाना खिला दिया करे। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। यानी उसके लिए जो रोज़े की ताकत रखते हैं वो फिदिया में एक मिस्कीन को खाना खिला दे, फिर वो नेकी में शफ़क़त करे तो वो उसी के लिए बेहतर है। लेकिन तुम्हारे हक़ में बेहतर काम रोज़ा रखना ही है अगर तुम बाइल्म हो। अल्लाह का शुक्र है कि ये आयत इसका माना मतलब मनसूख हो गया, नहीं तो अमीर लोग कभी रोज़ा ही नहीं रखते। एक मिस्कीन की जगह 5-5 मिस्कीन को खाना खिलाकर, फ़कीर को खाना खिलाकर रोज़ा रखवा लेते। लेकिन ये दूसरी जो आयत आ रही है इसमें आपको पता चलेगा कि किन पर रोज़ा फ़र्ज़ है और किन पर ज़रूरी है। चौथा मरहला अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़लियसुम। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया। अल्लाहु अकबर।
माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों को हिदायत देने वाला है, जो लोगों के लिए हिदायत और हक व बातिल की तमीज़ की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीना को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। इस महीना में कुरान नाजिल हुआ है, लेकिन हमारे पास इतना भी फुर्सत नहीं कि हम इस महीना में भी कुरान को खोलकर 2, 4, 5 मिनट उसकी तिलावत करें, इतना भी वक्त नहीं है। लेकिन रोज़ा में कुरान नाजिल हुआ इस बाबरकत महीना में। इस महीने को बरकत जो मिली है इसी वजह से मिली है कि इस महीना में कुरान नाजिल हुआ। इस महीने में जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर रोज आया करते थे, लेकिन हम काम धंधे में, बिजनेस में, कारोबार में इतना मसरूफ हो चुके हैं और दुनिया को हासिल करने के लिए, दुनिया को कमाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत बटोरने के लिए हम इतना पागल हो चुके हैं कि हम ना रोज़ा को देखते हैं, ना रमज़ान को देखते हैं, ना कुरान को देखते हैं, ना सही को देखते हैं, ना गलत को देखते हैं। इतना बेकार हो चुके हम दौलत कमाने के चक्कर में, दुनिया को हासिल करने के चक्कर में। और मैं हर जुमा में एक ही चीज़ मुसलमानों को कहता हूँ, ओ मुसलमानों, ये जो जिंदगी मिली है ये 60 साल की जिंदगी है, ये 70 साल की जिंदगी है, ये 80 साल की जिंदगी है, ये 50 साल की जिंदगी है। उसके बाद इस दुनिया से तुम्हें रुखसत होना है। लेकिन मुसलमानों, वो जो जिंदगी मिलेगी ना 100 साल की होगी, ना 200 साल की होगी, ना 300 साल की होगी, ना 1000 साल की होगी, ना 2000 साल की होगी, बल्कि वो जिंदगी हमेशा हमेशा रहने वाली है। उस जिंदगी के लिए कुछ सामान मुहैया करो, उस जिंदगी के लिए कुछ बंदोबस्त कर लिया करो। मुसलमानों, जब तक जिस्म के अंदर जान है, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर जिंदा रखा है, मुसलमानों, आखिरत के बारे में कुछ तैयारी कर लो, आखिरत की फिक्र कर लो। ये दुनिया खत्म होनी है, इस दुनिया से हमें रुखसत होना है। ये रोज़ा जो आपको मिला है, कोई गारंटी नहीं कि आने वाला साल भी आपको ये रोज़ा मिले। हासिल कर लो। दौलत से ज्यादा कीमती नेकी है, इसे हासिल कर लो। ना बेटा, ना बेटी, ना माँ, ना बाप, ना बीवी, ना शौहर, कोई काम नहीं आने वाला। जो करोगे वही पाओगे। दुनिया को हासिल करते करते ही मर जाओगे, याद रखना। दुनिया नहीं, आखिरत को हासिल करो। इस आयत करीमा के अंदर फमा शहिदा मिनकुम शहर फलियसुम के जरिए हर साहिब ताकत, मुकीम, आकिल, बालिग के लिए रोज़ा रखना फर्ज किया गया है। और मिस्कीन को खाना खिलाने का हुक्म रोज़े की ताकत रखने वाले से मनसूख हो गया। अलबत्ता बड़े बूढ़े और उस बीमार के लिए बरकरार रहा जिसकी शिफा की कोई उम्मीद ही ना हो। निज हामिला और मुर्दिया के लिए भी यही हुक्म बाकी रहा, यानी हमल वाली औरतें और दूध पिलाने वाली औरतें अगर परेशानी महसूस करें तो वो भी मर्ज के हुक्म में होंगी, बीमारी के हुक्म में होंगी, यानी वो रोज़ा नहीं रखेंगी, बाद में उसकी कज़ा करेंगी। यही एक ऐसी इबादत है जो किसी भी हालत में माफ नहीं है। शायद कि आप लोगों ने फिक्र नहीं किया है। नमाज माफ है किन पर? औरतों पर। 3 दिन 5 दिन उनके लिए माफ है, लेकिन रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर कहता है कि वो माफ नहीं, कज़ा करो, बाद में उसको रखो। रखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। जब तक जिंदा हो रोज़ा रखो। जब बूढ़े हो जाओगे कहोगे बूढ़ा हो गया हूँ, रोज़ा नहीं रख पा रहा हूँ, दूसरे को रोज़ा रखवाओ, मिस्कीन को रोज़ा रखवाओ। अगर बीमार हो, कभी ठीक नहीं हो सकते तो भी दूसरे को रोज़ा रखवाओ।
माप नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत दी है, बिल्कुल हट्टा कट्टा नौजवान कहता है कि बर्दाश्त नहीं कर पाता, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, मौलवी साहब दिन भर मजदूरी करते हैं, क्या करेंगे, रोज़ा नहीं रख पाते हैं। अफसोस है इसे नौजवान पर, अफसोस है इसे इंसान पर, अफसोस है इसे मुसलमानों पर जो ये नाटक करता है, ये बहाना करता है कि मैं काम करने की वजह से रोजा नहीं रख पा रहा हूं। अफसोस है इसे, और वो बदनसीब है। और इब्तिदाई इस्लाम में बहुत सारी बातें आएंगी इंशाअल्लाह, मसला मसाइल वाली बातें आएंगी, गौर से सुनिए। इब्तिदाई इस्लाम में एक हुक्म ये भी था कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद या इशा की नमाज या सोने के बाद खाना पीना और बीवी से हम बिस्तरी करना सब मना हो चुका था। सोने तक इन सब चीज़ों की इजाज़त थी। तरावी पढ़कर जब आप घर जाते हो ना, उतने ही देर तक आप खा भी सकते, पी भी सकते, अपनी बीवी से हम बिस्तरी सोहबत कर भी सकते, उतने ही देर तक। यानी मुसलमानों पर इशा की नमाज के बाद से या सोने के वक्त से लेकर अगले दिन के सूरज डूबने तक रोजा रखना फर्ज था। मुसलमानों, शर्म करो बेरोजेदारों, शर्म करो ओ मुसलमानों जो इस महीने में रोजा नहीं रखते, शर्म से डूब मरो। एक ऐसा वक्त था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इशा की नमाज से लेकर अगले दिन के सूरज डूबने तक रोजा रखना फर्ज था, जिसकी वजह से मुसलमान बहुत परेशानी महसूस करने लगे और हद दर्जा कमजोर हो गए। जैसा कि सही बुखारी का एक वाक़या है, बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, बयान करते हैं कि आगाज़ इस्लाम में जब सहाबाए कराम रोज़े से होते और इफ्तार के वक्त अगर कोई सो जाता तो उस रात में और आने वाले दिन में भी उन्हें खाने पीने की इजाज़त नहीं होती, खाने पीने को नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि फिर शाम हो जाती। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कैस बिन सिरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रोज़े से थे। जब इफ्तार का वक्त हुआ वो अपने घर में आए और अपनी बीवी से कहा कि क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। बीवी ने जवाब दिया, कैस बिन सिमरा इस वक्त तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जा रही हूँ कहीं से कुछ लाती हूँ। दिन भर के काम की थकान से कैस बिन सिरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख लग गई, सो गए। जब उनकी बीवी वापस हुई, जब उनकी बीवी आई और उन्हें सोते हुए देखा तो कहा, अफसोस तुम आज भी महरूम ही रहे। दूसरे दिन फिर वो उसी तरह काम पर चले गए। दोपहर के वक्त वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इतनी मुशक्कतों के बाद भी वो लोग रोजा रखते थे। हमारे जैसे बेईमान मुसलमान नहीं थे, हमारे जैसे दिखावे मुसलमान नहीं थे, वो लोग मजबूत ईमान वाले थे। सो गए, दूसरे दिन दोपहर के वक्त वो बेहोश हो गए। उसका जिक्र इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किया गया। उस मौके पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई, उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़थु इला निसाइकुम। उन लोगों तुम्हारे लिए रमजान की रातों में अपनी बीवी से मिलना हलाल कर दिया गया है। रमजान की रातों में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना, अपनी बीवी से सोहबत करना हलाल कर दिया गया है, जायज कर दिया गया है। इस पर सहाबाए कराम बहुत खुश हुए। मज़ीद अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि तुम्हारे लिए
शौक से खाओ पियो यहाँ तक के सुबह की सफेद धारी रात की काली धारी से नमाया हो जाए, यानी सुबह सादिक और सुबह कादिब में फर्क नमाया हो जाए। खाओ। आज हम लोग क्या करते हैं, सहरी के वक्त बहुत जल्द उठ जाते हैं। अगर 4:26 पर सहरी का वक्त ख़त्म होता है, हम 3:30 बजे उठ जाते हैं और खाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं, और लेटने से क्या हो जाता है, सो जाते हैं। फजर की नमाज गई। यही होता है। नहीं, एक वक्त मुतय्यन कीजिए कि खाना खाएं, खाना ओना खाते खाते जैसे ही इत्मीनान हुए और आज़ान हो, ताकि फजर की नमाज मिल जाए। फजर की नमाज की अहमियत शायद आप लोग जानते ही नहीं है। इसकी सुन्नत की अहमियत ये है कि अगर कोई मुसलमान जान ले कि फजर की नमाज की जो सुन्नत है उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर वो जान ले तो घुटनों के बल अपने घर से आए, लेकिन फजर की सुन्नत को ना छोड़े, घुटनों के बल। अब सोच सकते हैं, अगर किसी का पैर नहीं है या पैर होते हुए अगर वो चाहे इसकी अहमियत को जानना चाहे तो घुटनों के बल चल कर आए, लेकिन फजर की सुन्नत को भी ज़ाय ना करे। इसकी अहमियत है और हम सो जाते हैं। सुबह सादिक तक खाने पीने की इजाज़त है। इत्मीनान से खाओ, सुकून के साथ खाओ, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ने के लिए आओ। इस आयत करीमा के शान नुज़ूल में एक दूसरा वाक़या बयान किया जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किसे उन्हें कौन नहीं जानता, इन्होंने भी अपनी बीवी से सहबत करके, अपनी बीवी से हमबिस्तरी करके परेशान हो गए। फिर इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सारा वाक़या बयान किया। उस मौके पर आयत करीमा नाज़िल हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि रोज़े की रातों में भी तुम्हारे लिए अपनी बीवी से मिलना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारी लिबास है, तुम उसके लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा खयानतों का इल्म अल्लाह ताला को है। वो तुम्हारी तौबा कबूल फरमाकर तुमसे दरगुजर फरमा लिया। तुम्हें उनसे मुबाशरत और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को तलाश करने की इजाज़त है। तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धागा से धागे से वाज़े हो जाए। फिर रात आने तक रोज़े को पूरा करो, यानी सूरज डूबने के फौरन बाद इफ्तार कर लो। इफ्तारी में भी लेट नहीं कर सकते। आज़ान का इंतज़ार आपको नहीं करना है। आपके घर में 2-4 मोबाइल है, 2-4 घड़ी है, वक्त देखें कि 5:51 पर इफ्तारी है। 5:51 हो जाए फिर आज़ान का इंतज़ार ना करें, क्योंकि आज़ान देने वाला इफ्तारी करने के बाद आकर आज़ान देता है। ऐसा नहीं कि वो पहले आज़ान देता फिर इफ्तारी करता है, पहले इफ्तारी करता फिर आके आज़ान देता है। तो आप वक्त को देखें, सहरी में देरी करें और इफ्तारी में जल्दी करें। जैसे ही वक्त हो जाएगा आप इफ्तारी कर लें। और वक्त हो चला है, तकरीर तो बहुत लंबी है कि अभी भी आधा घंटा जा सकता हूँ, लेकिन जितनी बातें हुई इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप इसी पर अमल करेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है